Hello everyone. Today I am going to explain you matrix organization. Here matrix organization meaning is given. Matrix organization is a modern kind of organization which has two different type of structure. Two type of structures are there. One is the simple kind of structure which form the part of decision making, and the second one is a technical solution based which is called the project structure. So what do you mean by project structure? Technical problem solution based project is called the project structure. The combination of both is the result as a matrix organization, means combination of a simple structure and a project structure. So that is of a matrix organization. Hence matrix organization is modern organization. Which is a modern organization? Matrix organization is modern type of organization which is involved work based and project based. Matrix organization includes work based and project based. Peculiarities means चुन के लिए गए हो वैसे. In this type of organization, the specialized work need are given benefit. तो यहाँ पर specific task experts person have to be appointed for matrix organization. At the same time, project management benefit are also obtained. तो project management के जो भी benefits है वो भी maintain होते हैं. It is a multi-phased structure. Which structure is called the multi-phased structure? Matrix organization is called the multi-phased structure. Okay, so यहाँ पर डिज़ाइन दी गई है. कैसे डिज़ाइन किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द डिज़ाइनिंग पार्ट के अंदर in the matrix organization we find the combination of work based and project based organization. In this type of organization each project manager is given different type of work. हर एक मैनेजर को अपनी अपने हिसाब से different type of work have to be allotted and responsibilities also have to be allotted. Okay, as many project managers are appointed as per the number of project. तो जितने मैनेजर जितने प्रोजेक्ट्स है उतने मैनेजर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोजेक्ट असाइंड टू हिम. तो हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी असाइनमेंट्स किया गया है तो वो फुलफिल होना ही चाहिए. ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट इट ऑन टाइम. ओके, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो टाइम से कंप्लीट करके सबमिट करे टॉप लेवल अथॉरिटी को. द एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स. एक्सपर्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट वर्क एरिया. अलग अलग वर्क एरिया होता है, जैसे कि परचेज मैनेजर परचेज के लिए होता है, सेल्स मैनेजर, तो उसके अंदर भी एक्सपर्ट्स हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक टास्क जो उनके प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल रहे. सच काइंड ऑफ selected experts are divided into different groups. तो ये जो सारे एक्सपर्ट्स हैं दैट हैव टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. एग्जाम्पल दिया गया है कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करते हैं, रिसर्च एक्सपर्ट्स जो रिसर्च वर्क करते हैं, मार्केट का रिसर्च, प्रोडक्ट का रिसर्च, मैन्युफैक्चर एंड क्रिएशन स्पेशल एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स. सो एग्जाम्पल 1 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं हाउ मैनी टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स हैव टू बी अपॉइंटेड, विच काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर द स्पेसिफिक टास्क. So this all are computer experts, research experts, manufacture and creation special experts, technical experts. So this all are the varieties of experts. This kind of experts are obtained from different work group. अलग अलग वर्क एरिया से लिए गए होते हैं एक्सपर्ट्स.
once when the work is done they are sent to their respective work area. एक बार जो वर्क हो गया, वर्क इज़ डन, तो वो रिस्पेक्टिव वर्क एरिया में पहुंचाया जाता है, विच दे बिलोंग्स, जहाँ पर वो वर्क करवाना चाहते हैं. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी ड्रोन. यहाँ पर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया गया है. यू कैन बी ऑब्जर्व दिस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल में आते हैं जनरल मैनेजर, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, प्रोडक्शन, परचेज मैनेजर, इंजीनियर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो दिस ऑल आर द वर्किंग अंडर जनरल मैनेजर. ओके, और ये अपॉइंट करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर को. ओके, तो प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट टाइप ऑफ, सपोज एक प्रोजेक्ट दिया गया है प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स जो होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के एक्सपर्ट्स दैट हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर. तो वो एक्सपर्ट जो है वो प्रोडक्शन के लिए, परचेज, इंजीनियर, रिसर्च, ये सब के लिए ये प्रोजेक्ट ध्यान में रखते हुए बनाते हैं. सेकेंड प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो सेकेंड हैंडल करने वाला है, सो वो पर्टिकुलर एरिया का होना चाहिए एंड दैट हैव टू बी वर्क टुगेदर. एंड थर्ड इज़ प्रोजेक्ट नंबर 3, प्रोजेक्ट मैनेजर 3, तो वो भी अलग अलग टास्क कंप्लीट करता हुआ होना चाहिए. सो दैट हैव टू बी रिलेट विद द प्रोडक्शन, परचेज, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो ये सब टास्क हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो ध्यान में रखते हुए बनाता है. ओके, सो दैट इज़ अबाउट द डिज़ाइन. From the above diagram, it is clear that matrix organization, the flow of authority is double fold. Okay, double folded है. Example दिया गया है, general manager from upper level pass to the on the project head to the lower level. general manager जो है वो project pass करता है उसके head को, परचेज मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर को, उस तरीके से. एंड दैट इज़ इन द लीनियर मैनर, मीन्स एक ही लाइन में जाता हुआ है. इट इज़ ऑल्सो मैंशन हियर दैट ऑल द प्रोजेक्ट हेड फंक्शंस इंडिपेंडेंटली. प्रोजेक्ट मैनेजर हेड वर्क इंडिपेंडेंटली, मीन्स फ्रीली वो अपना काम कर सकते. दे ऑब्टेन एक्सपर्ट्स नीडेड बाय व्हेन देम फ्रॉम डिफरेंट वर्क एरिया. जो जब ज़रूरत होती है तब दे हैव टू अपॉइंट द एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं. दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ मोर नीडेड वेयर देयर इज़ अ मोर नीड फॉर द शॉर्ट टर्म वर्क रिक्वायरमेंट. कहाँ पर ज़रूरी होता है, जहाँ पर शॉर्ट टर्म वर्क रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर. सो दिस इज़ अबाउट द डिज़ाइन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट जो हमारा है डिसेंट्रलाइजेशन. यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट डू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है. यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं. सम बिजनेस यूनिट्स आर सच व्हेन ऑथोरिटी centralized at top level only, and the most of the decisions are taken by the top level. Okay, so decisions are to be taken by the only top level management. So here decentralization is not possible, that is called the centralization. Okay, जो डिसीजन करता धरता पूरे बिजनेस का एक ही होता है टॉप लेवल, तो दैट इज ऑफ centralization. In some business organization, decisions making is done by all the levels, and this certain kind of decisions are taken as per the requirement of the work needed. जब ज़रूरत होती है तब उस काम के एरिया से वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं. डिसीजंस आर टेकन एज पर द वर्क needed. Okay, so in first type of organization all the power rests to the upper level. Okay, upper level पे ही है जो first point हमने देखा था only, and so it is called the centralized structure.
तो ये वाला जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर. बट द सेकेंड टाइप, जो सेकेंड टाइप हमने देखा, दैट टाइप ऑल द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, एंड all the levels have specific power. It is called the decentralization of the authority. Okay, तो second part है decentralization of authority. Next हमारा concept है though the thought of centralization is very important from the viewpoint of authority and responsibility. यहाँ पर centralization जब होता है तब authority and responsibilities एक ही पर्सन के पास होती है, पर decentralization जब होता है so that have to be distributed among different parts. The small size organization can be centralized power. मीन्स छोटा जो भी दुकान होती है, जनरल स्टोर, किराना स्टोर होता है, वहाँ पर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पावर हैव टू बी. ओके, पर अगर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म इज एग्जिस्ट. तो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, यू कैन बी वेरी क्लियर विद द मीनिंग. Delegation of power from upper level in order to in ordinarily manner is known as a decentralization of power. Okay, definition is given by the Henry Fayol. Henry Fayol ने definition दी है, to assign power to the superior to enable distribution of work and to include in the decision making process is called decentralization. Okay, decentralization means distribution of work. यहाँ पर distribution of work means काम का बंटवारा कर दिया है, including the decision making process. Okay, decision making process भी उनको divide कर दिया है, so that is of decentralization. Then in this way the allotment of decision making authority to that phase of people who need to take decision is called the decentralization of power. Okay, तो जो भी पर्सन को जो भी डिसीजन दिया गया है so that is of decision making power जिसके पास होता है, allotment of decision authority responsibility जिसको भी सौंप दी गई है, so वो कहते हैं decentralization of power. It does not mean that all the powers are given by the upper level. सारे पावर जो है that are not given to the upper level from the upper level to the administrative part, but most of the power have to be rest to the top level authority. Okay, lower level में up to the extent only they have to give that power. So here level administrator to the lower level, but most of the powers are given. It is called the decentralization of power. Means जो भी पावर होता है उसको अलॉट कर दिया गया है और दूसरों को दे दिया गया है, so that is of decentralization of power. Importance देख लेते हैं हम. Importance is given over here. The success of the management depends on the proper distribution of authority and responsibility. तो यहाँ पर authority and responsibilities के ऊपर depend है. In centralization of power the hierarchy. Hierarchy का मतलब है कि जो भी decisions लेने का होता है वो top level से middle level से bottom level, तो that is called the hierarchy. ओके, हायरार्की का मतलब है कि जो एक दूसरे से इंक्लूड होके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आते हैं वो. ओके, नॉन साइंटिफिकली टेकन डिसीजंस, नॉन कोऑपरेशन, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मोर वर्क लोड एट्सेट्रा कैन बी सीन. तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन के अंदर ये सब होता है. Hence the idea of decentralization is become popular. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया एग्जिस्ट हुआ. मॉडर्न टाइम के अंदर भी ये एक्सेप्टेबल है. सम क्लासेस हैव टू बी डिसाइडेड. और यहाँ पर हमारे यहाँ
इम्पॉर्टेंस दिए गए हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। यहाँ पर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपको इम्पॉर्टेंस। तो फर्स्ट इज़ अ क्विक डिसीजन। In a decentralization, the person who has to take the decision that work activities involved completely has the power to take the decisions and hence decisions are to be taken quickly. तो यहाँ पर जिसको भी डिसीजन लेना है वो क्विकली ले सकता है क्योंकि उसको ऑथोरिटी पावर दे दिया गया है। ओके, तो इसीलिए दैट हैव टू टेक द क्विक डिसीजन। द नेक्स्ट इज़ लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल। टॉप लेवल में जो भी वर्कलोड होता है दैट इज़ लेस, क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल में अलॉट कर दी है और सिर्फ उस किसके ऊपर फोकस करेंगे, टॉप लेवल अथॉरिटी। मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मैटर्स रिलेटेड डिसीजंस आर टेकन, तो उसमें वो ज़्यादा फोकस करेंगे। With the help of decentralization of power, the decision taken authority given in the middle or a lower level, hence the workload is reduced. अपर लेवल का वर्कलोड रिड्यूस होता है तो वो पॉलिसी मैटर रिलेटेड डिसीजंस होते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान रखने के लिए कैपेबल होते हैं। सो दे हैव टू बी फोकस ऑन देयर एम, गोल जो होता है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे। थर्ड इज़ इंक्रीज इन अ मोटिवेशन। इंक्रीज इन मोटिवेशन मीन्स उनको काम का बढ़ावा देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉयज़ आर इंक्रीज्ड लेवल, एम्प्लॉयज़ हैव इंक्रीज द लेवल ऑफ मोटिवेशन। जो उनका मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ता है एंड मोर फेथ एंड ट्रस्ट हैव टू बी डेवलप्ड अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। दे आर गिवन इंडिपेंडेंस ऑन मिडल और लोअर लेवल। ओके, वो इंडिपेंडेंस होते हैं, फ्री होते हैं कि वो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजंस बिकम सक्सेसफुल, और जब डिसीजन सक्सेसफुल होता है तो उनका कॉन्फिडेंस पावर इंक्रीज होता है। दे ऑल्सो गेट द एक्सपीरियंस। तो एम्प्लॉयज़ अगर कोई भी डिसीजन लेंगे उसमें फेथ बढ़ेगा, टॉप लेवल अथॉरिटी का ट्रस्ट और फेथ बढ़ेगा एंड दैट हैव टू बी मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, और उससे उनका कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस से एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सो दैट टेक्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर मोटिवेशन एंड दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन इज़ वेरी हेल्पफुल सिचुएशंस के संभालने के लिए। एम्प्लॉयज़ हैव टू टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट हमारा है increase in management ability. In decentralization, the middle and lower level employees takes decisions. कौन कौन लेते हैं? middle level and the lower level. Decisions as per their power and they are given independence for the same. Okay, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस होते हैं, फ्री होते हैं, हैंस दे बिकम एफिशिएंट लीडर। ओके, तो इसीलिए वो डिसीजन एबिलिटी होती है तो इफ़िशिएंट लीडर बनते हैं। दे डेवलप स्किल टू वर्क कोऑर्डिनेट मैनर। तो वो कैसे काम करते हैं? कोऑर्डिनेट मीन्स एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। दे डेवलप एबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। उनकी जो एबिलिटी है वो डेवलप करते हैं, एडमिनिस्टर कंट्रोल करते हैं। हैंस द एम्प्लॉयज़ टेक डिसीजंस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं उसमें वो डिसीजंस लेने में कैपेबल होते हैं एंड दे इंक्रीज देयर एबिलिटी। तो जो उनकी क्षमता है वो बढ़ाते थे। इन दिस वे द फ्यूचर मैनेजर एमर्ज, और फ्यूचर के मैनेजर यहाँ पर ही बनते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। नेक्स्ट हमारा है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। हमारा जो कंट्रोल होता है वो इफ़ेक्टिव। द मैनेजर ऑफ ऑल द लेवल्स हैव इनफ पावर एंड सो दे कैन exercise control on the levels in which the employees commit mistake. एम्प्लॉयज़ जहाँ जहाँ पर मिस्टेक करते दे हैव टू बी रेक्टिफाइड। उनको मिस्टेक को रियलाइज़ कराते। दे कैन बी डिसिप्लिन action. Okay, disciplinary action which become easy for them and hence
एंड इफ़ेक्टिव कंट्रोल इज़ मेंटेन। ओके, तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो सकता है एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखते हुए, दे हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। नेक्स्ट हमारा है हारमनी इज क्रिएटेड, मीन्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना। ड्यू टू दिस डिसेंट्रलाइजेशन ऑल द लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर इंक्लूड इन द डिसीजन मेकिंग। हर एक लेवल के एम्प्लॉयज़ जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। एंड दे ऑल्सो गिव ड्यू इम्पॉर्टेंस। ड्यू इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व देते हैं। ऑल द लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़, हर एक लेवल के ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ दैट डिसीजंस मेकर्स आर फॉलोवर, जो भी फॉलोइंग करते हैं टॉप लेवल ऑथोरिटी का, दे डिस्कस थिंग्स एंड देन टेक प्रॉपर डिसीजंस। वो सोचते हैं, एक दूसरे के साथ सोचते, फिर प्रॉपर डिसीजंस दे आर टेकिंग। इन दिस प्रोसेस वन ग्रुप कम्स इनटू कांटेक्ट विद द अदर ग्रुप, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो एनवायरनमेंट ऑफ हारमनी इज क्रिएटेड। ओके, तो एक साथ मिलजुल कर काम करने का जो भी तरीका है वो डेवलप होता है। सो दैट इज़ हारमनी इज डेवलप्ड। ये 6 पॉइंट्स हैं, आपको 3 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस आ सकता है, या फिर आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पूछ सकते हैं। ओके, देन लिमिटेशंस यहाँ पर दी गई है। द प्लेस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल एंड द बिजनेस सीक्रेट्स आर टू बी मेंटेन विथ अ ग्रेट विजिलेंस। जहाँ पर छोटा बिजनेस होता है और वहाँ पर सीक्रेट्स बहुत ही ध्यानपूर्वक छुपाए जाते हैं, विजिलेंस के अंडर में होते हैं। इन दिस केस डिसेंट्रलाइजेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ड्यू टू कॉमन पॉलिसी नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन कोऑर्डिनेशन नॉट मेंटेन प्रॉपरली, डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट सक्सेसफुल। कॉमन पॉलिसी नॉट इम्प्लीमेंटेड और कोऑर्डिनेशन नॉट मेंटेन प्रॉपरली, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की लिमिटेशंस है, फिर भी बिग बिजनेस के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।